So we are solving code forces difficulty level 17 problems. So in the same row, we are just solving next three problems. Uh, three problems. Okay. So this is the first problem. Triangles. So Guillaume has a square board consisting of n rows and columns of square cells, each consisting of a single digit 0 to 9. A cell at the j column and the ith row is represented as I comma j, and the length of each side is 1. Guillaume like big things so far. Each digit d he want to change the triangle such that each vertex of the triangle is in the center. Okay, center of a cell. The digit of every vertex of triangle is d. At least one side of the triangle is parallel to the one of the side of a board. You may assume that the side of 0 is always parallel to the side of board, and the area of triangle is maximized. Okay. At least one side is parallel, area should be maximized. So what you can do, of course, he can't just be happy with finding this triangle as is. Therefore, for each digit d, he's going to change the digit of exactly one of the cell of the board to d, and then find such a triangle. Okay. So basically, we need to find the two digit of the same two same digits, and third will be gonna be replaced. Okay. He changes it back to the original digit after he is done with the full each digit. Find the maximum area of triangle he can make for each digit. The area will go to 0. So we kind of having n cross n matrix. Uh, oh, let it go. So we are given a kind of n cross n matrix. And let's say 4 cross 4 matrix. So H, first of all, how many for a triangle? 3 vertex are needed. 3 vertex are needed. We can make by our choice will be 1 vertex, and we need to find 2 more. So when we are visiting whole vertex, let's say we find here digit 8. Okay, so what I need to do? So what I need to do, I having the digit 8 here. So I need to find first of all, let's say the area is equal to half into base into height, and I need to find 2 into area. So it is given is that, so I need to find multiply by 2. So basically I need to find base into height. So let's say I'm just taking triangle such that base is parallel to this side, so it will be look something like that. So I need to take the maximum base, so I can put so I can change maximum 1d. So I'm just changing this one. So मैं इसको चेंज कर लूँगा, तो फिर बेस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लाइक n माइनस द पॉइंट x पॉइंट इनटू हाइट. अब मुझे हाइट मैक्सिमम चाहिए, तो हाइट तो इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है. तो कहीं भी हो, मतलब कहीं भी हो, इस तरफ हो, इस तरफ हो, कहीं भी हो, तो इट विल बी हाइट विल बी द दिस हाइट. सो दिस इज द हाइट. ओके. सो हाइट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँ, मैं 8 पॉइंट के लिए, मतलब किसी भी ट्रायंगल के लिए, बेसिकली मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 8, तो ये किसी के लिए मुझे हाइट फाइंड करनी है, तो फिर वो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है. तो फिर मैं अगर किसी, जैसे कि 8 है, तो मैं इसका फाइंड कर लूँ कि इसका जो y है वो y या x को y होता है पॉइंट, तो x कितना पॉइंट मैक्सिमम है, मतलब वो x मिनिमम का क्या है और x मैक्सिमम क्या है. ठीक है. एक्स मिनिमम मुझे, मतलब इस पॉइंट, इस मिनिमम एक्स इस मिनिमम पे या इस मिनिमम रो पे ये परसेंट है, तब मैं उससे हाइट निकाल लूँगा. तो हाइट पता लग गई, तो मुझे बस एक एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम फॉर ईच पॉइंट मैंने फाइंड कर लिया, तो मैं ये भी फाइंड कर सकता हूँ हाइट की. ओके. नाउ सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस हो गया, मैं ट्रायंगल ऐसे ले रहा हूँ, मतलब वो पैरेलल है इस साइड के, अगर वो इस साइड के पैरेलल हुआ तो इट विल बी लुक समथिंग लाइक दिस. ओके. तो कुछ ऐसा दिखेगा. ओके.
तो अब मैं इसको कहूँ कि अब मुझे चाहिए पैरेलल साइड, तो मैं कहूँ मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो वो ऐसे हो जाएगा, तो वो भी कितना हो जाएगा हाइट। अब बेस अगर ऐसे हुआ तो ये कितना हो गया, बेस विल बी द पॉइंट ऑफ वाई माइनस एन या वाई, इन दोनों से मैक्सिमम वाई माइनस वन, सॉरी हाँ वाई माइनस वन एंड वाई माइनस एन। ओके, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो, अगर मैं जीरो से एन माइनस वन ले रहा हूँ तो ये एन माइनस वन। ठीक है, ठीक है। अब मुझे वो हाइट चाहिए, अब हाइट के लिए वही वाई मैक्सिमा या वाई मिनिमा पॉइंट, मतलब मुझे फाइंड कर लिया इस, मतलब जो मैं 8 के लिए फाइंड कर रहा हूँ, तो एक तो मैंने चेंज कर दिया वो यहाँ पे, अब मुझे मैक्सिमम चाहिए पॉइंट। तो ये कैसे फाइंड कर सकता हूँ मैं, इसको फाइंड करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हाइट विल बी द मैक्सिमम, कि 8 पॉइंट के लिए वाई मैक्सिमा किस पॉइंट पे है, मतलब कि वाई किस मैक्सिमम कॉलम में वाई एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, किसी भी कर रहा हूँ, तो वो हाइट में ही आ जाएगी। क्योंकि हाइट, जैसे कि मैं एक ट्रायंगल बताऊँ, तो हाइट बेसिकली ये नहीं होती, जैसे कि ये है कोई ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, सो दिस इज द बेस, एंड इफ इट इज नॉट दैट द हाइट विल बी समथिंग लाइक दिस, so this will be the height, so it will be considered the distance between this baseline to the highest point of the peak point of the triangle, this will be height। okay, तो हमें हाइट और बेस मुझे फाइंड करना है बस, तो फिर वो किससे जाएगा, तो फिर मुझे हर एक पॉइंट के लिए एक्स मैक्स या एक्स मिनिमा और वाई मैक्स और वाई मिनिमा, ये 4 पॉइंट कैलकुलेट करने होंगे बस। तो यू कैन सी दैट इफ आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग दीज 4 पॉइंट्स, आई एम गुड टू गो। लेट्स गो फॉर कोड। ओके, सो कोड लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है एक तो एन टी टेस्ट केसेस, टी टेस्ट केसेस, देन आप वेक्टर ऑफ एन क्रॉस एन, वेक्टर ऑफ इंट ए ऑफ एन कॉमा एन क्रॉस एन को पहले तो मुझे क्या चाहिए, इंट एक्स मिनिमा विल बी मैक्सिमम 10 पॉइंट हो सकते हैं, एक्स मैक्सिमा 10 पॉइंट हो सकते हैं इसके भी, वाई मिनिमा के भी 10, क्यों मतलब डिजिट 0 से 10 तक हो सकती है ना, इसलिए वाई मैक्स। तो इसका साइज 10 के लिए, क्योंकि जो डिजिट है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 10। ओके, ओके, फिर इसके बाद पहले तो मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ सबके 0 0, क्योंकि अरे में वो इनिशियलाइज नहीं होती। तो फिर एक्स मिनिमा ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स मैक्स ऑफ, सॉरी एक्स मैक्स एक्स मिनिमा ऑफ आई इज इक्वल टू वाई मिनिमा ऑफ आई इज इक्वल टू वाई मिनिमा, और वो सब की वैल्यू होगी इसकी 0। ओके, अब क्या करना है मुझे, सबकी 0 वैल्यू हो गई, अब मुझे बस फाइंड करना है। फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, पहले तो मैं वो ले लेता हूँ, फोर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस, एंड इंट एक्स वैल्यू मतलब जो करंट वैल्यू वो है, तो फिर पहले तो मैं ए ऑफ आई को जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स, और एक्स मैक्सिमम ऑफ एक्स वैल्यू वो हो जाएगी, सॉरी 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 आई गॉट इट रॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि अगर हमने मैक्स मिनिमम वैल्यू पे 0 पुट कर दिया तो ये ऑलवेज 0 रहेगा, तो एक्स मिनिमम और वाई मैक्स पे तो इसमें तो 0 पुट कर देंगे, और वाई मिनिमा और एक्स मिनिमा पे इंट मैक्सिमम पुट करना पड़ेगा, और कह सकते हैं इंट मैक्सिमम पुट कर देते हैं, इट विल बी मोर क्लियर, और ये 0, ठीक है ना, सॉरी क्या पुट, तो फिर क्योंकि अगर मिनिमा पे 0 पुट कर दिया तो मैं सर्च करूंगा एक्स मिनिमा इक्वल टू मिनिमा ऑफ एक्स मिनिमा, तो वो 0 ही रहेगी, हमेशा चेंज नहीं हो पाएगी। फिर अभी तक जो वैल्यू आ चुकी है वो, और कॉमा आई, सिमिलरली एक्स मिनिमा ऑफ एक्स, मतलब इस पॉइंट के लिए वो वैल्यू कितनी जाएगी, मिनिमा ऑफ
इसकी पहले कितनी मिनिमम आ चुकी है और आई। सिमिलरली मैं बस कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैक्स मिनिमम फाइंड कर रहा हूँ किसी एक्स के लिए, इसका कोऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो सकती है और एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, वाई जे है। ओके, सिमिलरली वाई मिनिमा के लिए ऑफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमा ऑफ वाई में इस एक्स के लिए कितनी मिनिमम और ये जे में से जो मिनिमम होगा वो मैं ले लूँ। अब तो फिर सब मेरे पास आ गया, ठीक है ना, मेरे पास आंसर आ गए। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम एरिया। तो मैं एक आंसर भी ले लूँ, आंसर में 10⁵ 2000 है, 2000 2000 4000, तो मतलब आंसर में 10 डिजिट का ले लेता, तो फिर मैं इसको आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं फाइंड करता हूँ और इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, तो फिर यहाँ पे तो मैंने क्या किया है, एक्स मिनिमा और एक्स मैक्सिमा किसी पॉइंट के लिए मुझे उसकी वैल्यू स्टोर की है। सेम यहाँ पे भी किसी पॉइंट एक्स के लिए और पॉइंट एनी एक्स, आई जस्ट टेक आउट द वाई coordinate y minimum value and coordinate y maximum value, that's it, just I do that, I plus plus and for int j is equal to 0, j should be less than n and j plus plus। अब आंसर क्या होगा, तो फिर आंसर ऑफ j होगा, वो क्या होगा, अगर आंसर ऑफ विल बी, तो मैं यहाँ पे वैल ले लूँ, वैल इज इक्वल टू, वैल क्या है यहाँ पे, वैल्यू क्या है ए ऑफ आई कॉमा जे, तो इसकी वैल्यू के लिए मैक्सिमम आंसर क्या होगा, वो मैक्स क्या होगा, आंसर ऑफ वैल। तो फिर अगर मैं ये बनाऊँ तो फिर इसमें आंसर क्या होगा, बेस इंटू इट विल बी n माइनस एक्स, तो मैक्सिमम ऑफ n माइनस एक्स या n माइनस 1 होगा, क्यों x 0 से ले रहा हूँ, और n माइनस आई या i माइनस 0 या i, इनमें से मैक्स, और मतलब कि जैसे ये है तो फिर जैसे ये पॉइंट है तो इसमें से ये कितना हो जाएगा, जैसे कि ये कोई है, ये पॉइंट है, ये वो है, तो फिर ये डिस्टेंस, ये बेस या ये बेस, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 माइनस इसका i, और ये कितना हो जाएगा i, ठीक है। ओके, और हाइट कितनी होगी, हाइट होगी इसकी मैक्सिमम y वैल्यू या इसकी मिनिमम y, ये तो मिनिमम x वैल्यू, x मिनिमम फॉर दिस वन, अरे इसमें से मिनिमम y, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी, x मिनिमम में x मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू और i तो इससे बड़ा होगा, और x मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू माइनस i इनमें, ठीक है। तो हाइट तो मतलब ये तो मैंने बेस सिलेक्ट कर लिया कोई, इसमें जो मैक्सिमम होगा इन दोनों में से, और हाइट में भी वही सिलेक्ट कर लूँ, जैसे ये मैक्सिमम और ये हाइट, ये मैक्सिमम है, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेस और ये हाइट ले सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं मैक्सिमम सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मतलब ये यहाँ पे आई पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आई माइनस एक्स मिनिमम, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स मैक्स माइनस आई। ओके, अब दूसरा, अगर मैं जो वो बनाऊँ ग्राफ, वो ऐसा बनाऊँ जो वाई के अकॉर्डिंग हो, मतलब जो वाई एक्सिस है उसके पैरेलल हो, तो वैल्यू लगभग सेम ही आएगी, बस एक्स की जगह वाई चेंज करना है, दैट्स इट। तो फिर आंसर ऑफ वैल्यू, इसकी वैल्यू n माइनस 1 माइनस जे, या जे से, या जे से वाई मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, दैट्स इट। और फॉर इंट आई इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी होंगी, 0 से 9 या 1 से 9, 0 से 9, 0 टू आई लेस देन 9 एंड आई प्लस सी आउट, इसके लिए आंसर कितना आ रहा है। सो बस मुझे मैंने ये यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करी, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की, और बस वहाँ पे एरिया बना दिया मैंने, बेस और हाइट फाइंड करी। तो बेस में तो मैं उसके पैरेलल होनी चाहिए, तो इसको मैं मतलब कि मैक्सिमम लेने की कोशिश कर रहा हूँ वो पुट करके, क्योंकि मैं एक डी पुट कर सकता हूँ ना,
तो मैं वो पुट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम पे कहाँ पुट कर सकता हूँ वो बस। और सही। तो फिर ये तो काइंड ऑफ स्ट्रिंग है ना। ओ शिट, स्ट्रिंग है ये, तो फिर मुझे स्ट्रिंग करेक्टर लेके लेना पड़ेगा। एक सेकंड, कंट्रोल जेड एंड मुझे यहाँ पे कहाँ पे है वो स्टार्टिंग में, कहाँ गया क्या? अच्छा हाँ यही है। तो फिर मुझे यहाँ पे करेक्ट लेना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि वो स्ट्रिंग दे रहा है करेक्टर सी सीन सी एंड इंट एक्स इज इक्वल टू c minus o, then this will become value, integer value, if I'm just subtracting the si value of 0 character. So it will be giving me answer, I think so it will be good. 4 4 2 4 4 1, it will be a little bit, and 18 49 49 15 0 49 और little bit misbehaved. So कहीं पे कुछ एरर है, तो उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो पहले तो एन लिया हमने, टी टेस्ट की चीज़ें, फिर एन लिया, एन क्रॉस 10 वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, तो फिर अब मैक्सिमम वैल्यू की हमने एक्स मैक्सिमम और वाई मैक्सिमम की वैल्यू 0 पुट करी, आंसर 0 पुट किया, फिर आंसर मुझे मैक्सिमम चाहिए। फिर इसके बाद हमने मिनिमम वैल्यू को इंट मैक्स पुट किया। ओके, फिर 0 से एन एन में करेक्टर लिए, फिर इसको इंट में स्वैप चेंज किया, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दी, फिर मैंने एक्स मैक्सिमम वैल्यू पुट ली, फिर एक्स मिनिमम वैल्यू ली, इस तरह ही वाई मैक्सिमम वैल्यू ली और वाई मिनिमम वैल्यू ली। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे आया मैं, अब मुझे आंसर फाइंड करना है, तो आंसर वो क्या होगा, अगर मैं आई से लूँ तो फिर इनमें से दोनों में से मैक्सिमम और आई माइनस ये वैल्यू और माइनस ये वैल्यू। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड की, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन माइनस 1 माइनस जे, और जे मेरे मैक्सिमम, और यहाँ पे जे माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू और वाई माइनस जे की मिनिमम। ओके, दैट विल बी कूल। सही तो होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन क्या हो रहा है, आंसर ऑफ वैल्यू विल बी आंसर ऑफ वैल्यू, इन दोनों में से मैक्सिमम ले रहा हूँ, एन माइनस जे जे मैक्सिमम, जे माइनस वाई मिनिमम और वाई मैक्सिमम एक्स। चलो तो आई थिंक इसमें कुछ एरर नहीं लग रहा, तो फिर ये 0 1 2 2 के लिए फर्स्ट वाली में वैल्यू मैं कह रहा हूँ ये 2 आ रही है, तो फिर मैं इसका 1 और 1, तो मैं इसको 2 कैसे मान रहा हूँ मैं, हाँ एक्स मिनिमा एक्स, ये तो 0 आएगी। ठीक है, इसमें मैं कहूँ तो फिर ये कितना आएगा, हाँ एन माइनस 1 माइनस जे कितना होगा, ये 0 1, इसको चलो एग्जाम्पल करते हैं, ये इट्स विल बी गुड। तो 3 इंटू 3 क्रॉस मैट्रिक्स है मेरे पास, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ओके, 3 क्रॉस यहाँ पे है, 2 2 दो जगह है वैसे, यहाँ पे और यहाँ पे, बस ये है मेरे पास मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3। तो फिर वाई में मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो फिर मैं अगर वाई पे जाऊँ तो एन माइनस 1 माइनस जे, तो फिर यहाँ पे आई जे कितना हो जाएगा, 1 को 1, तो वो आ जाएगी वैल्यू एन माइनस 1 माइनस जे, एन माइनस 1 विल बी 2 माइनस 1 1 माइनस बेस 1 होगा, सही है, और जे माइनस जे विल बी 2 माइनस वाई मिनिमम, वाई मिनिमम यही आएगा, दैट इज 0, और इसमें मैक्सिमम हुआ 2 माइनस 1, तो विल बी 1 आना चाहिए। ओके, ये तो सही है। अब एक्स के लिए चेक करें, एन माइनस 1 माइनस आई और आई 1 1, तो फिर एन माइनस 1 माइनस आई, तो इट विल बी 3 माइनस 2 विल बी 2 1 1, और फिर
मैक्स ऑफ एक्स मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही होगी, 1। एक्स मिनिमम और मैक्सिमम एक आ रही होगी, तो एक्स ये तो जीरो ही आएगी होगी शायद। हाँ, ये कैसे आ रहा है, ये तो नहीं आना चाहिए। चलो एक टेस्ट केस को रन करके देखते हैं। ई टू तो आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सो सी आउट, मुझे क्या चाहिए, ये इनकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू। ओके, सिमिलरली सी आउट, इसकी वैल्यू, so it will gonna find out. I don't think so there will be an error, so maybe there is some small error. Let me find out. Okay, so it will be gonna give me a space after all of the things. So पहले तो ये आ रहा था किसमें, टू में। हम्म। अच्छा, ये क्या हो रहा है। अच्छा, आई इज इक्वल टू जीरो, आई प्लस प्लस जे इज इक्वल टू जीरो, जे माइनस माइनस, इस वैल्यू के लिए फाइंड कर रहा हूँ मैं, एक्स मिनिमा और वाई मिनिमा। तो जीरो जीरो के लिए भी टू 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 टू। ओके, जीरो वन और इसके लिए टू। तो मेरी वैल्यू फोर फोर और जीरो वन और टू, जीरो वन टू, टू के लिए तो ये तो जीरो के लिए होगा, ये वन के लिए और ये टू के लिए। ये तो टू प्लस टू फोर आना चाहिए था। आई, ओके 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 ओके, आई गॉट इट। हाँ, इंडेक्स कितना होना चाहिए इसका, इंडेक्स वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के लिए तो वो जीरो वन टू, ऐसे इंडेक्स वाइज है, सॉरी, जीरो वन टू, फिर ये वन वैल्यू, ये टू वैल्यू। हाँ, ये तो आ रहा है जीरो कोमा वन, अगर मैं इस पे रखूँ। ओके 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 ओके, आई गॉट इट। मैं इस पे ले रहा हूँ यहाँ, ये इस वैल्यू के लिए ले लूँ ये, तो फिर वाई वैल्यू टू आ रही है, ये वैल्यू टू आ रही है, दैट इज एन माइनस आई, हाँ ये वैल्यू टू आ रही है। तो जे इज इक्वल टू, हाँ इसके लिए टू आनी चाहिए, और जे माइनस वाई माइनस वन, ये तो जीरो आनी चाहिए फिर। वाई वैल्यू टू आ रही है, इसका मतलब जे इज इक्वल टू टू, ये ओके, आई गॉट दैट, आई गॉट दैट। ओके, माय बैड। ओके, यहाँ पे ये एरिया जो होगा वो कैसे होगा, लाइक अगर ये वैल्यू है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये तो वाई वैल्यू होगी ना, ये जे वैल्यू होगी, तो अपोजिट लिख दिया मैंने ये सब। तो यहाँ पे जे आएगा, यहाँ पे आई आएगा, सॉरी, माय बैड। या इट इज़ गुड, माय बैड, सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा बहुत। ओके, नाउ इट इज गोइंग ग्रेट। लाइक जो ये वैल्यू है, ये तो है जे वैल्यू, जो डिस्टेंस होगा वो मैंने आई वैल्यू ले रखा था, लेकिन वो तो एक्चुअली जे वैल्यू होता है ना। लेकिन डिस्टेंस होता है वो डिफरेंस ऑफ, ये जे में डिफरेंस होता है जो बेस होता है इसका, तो एक्स में जो डिफरेंस होगा वो जे में होगा। मे बी लॉन्ग लॉन्ग आंसर तो नहीं है इसका, टेन टू पावर फोर इंटू टेन टू पावर सिक्स, तो मे बी लॉन्ग लॉन्ग आंसर, चल देखते हैं इसका।
हो गए। हम्म 10, yeah, I think it is okay. Oh yeah, so this is the second problem. So what we are given, we are just given a circle game. Utkarsh is forced to play yet another game of one of Assis games. Okay, the game progression turns by turn, and as usual, Assis moves first. Consider a 2D plane. Okay, there is a token which is initially at 0,0. In one move, a player can increase the coordinate x-axis or y-axis coordinate by exactly k. In doing so, the player must ensure that the token stays within a good distance from 0 to. Okay, I got. So we are just kind of a circle. Let's say we have a circle. Oh, good. This is the x-axis. So initially we are at 0,0. Let's say we are increasing by some k. So we are just increasing. So Assis will gonna make a turn. So Assis के बाद उत्कर्ष चलेगा. So it will be something like Assis, then उत्कर्ष, then Assis. अब उसको लाइक अब वो सीधा चलते रहेगा, लेकिन उसको क्या पता लगेगा कि मैं मेरी टर्न में वो ये इससे आउट चला जाऊंगा, मतलब Assis यहाँ पे चल देगा, फिर मैं आउट चला जाऊंगा, तो उत्कर्ष एक टर्न मारेगा, ऊपर मारेगा, ठीक है। फिर अगर आशीष को लगेगा कि मैं आउट चला जाऊंगा, तो आशीष चल देगा। अगर मतलब कि वो काइंड ऑफ ऐसे चलेंगे। और मैं कहूँ तो अब जैसे यहाँ इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे उन्होंने डिस्टेंस की ऑप्टिमली चल रहे हैं दोनों, मैं इनिशियली इस पॉइंट पे आया, ओके। अगर मैं इनिशियली इस पॉइंट से मैंने यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है, तो फिर मैं क्या कहूँगा कि मैं देखूंगा कि चलो आशीष यहाँ से यहाँ तक चल देगा, यहाँ चल, फिर मैं चल दूँगा, फिर आशीष चल देगा, लेकिन मैं आउट हो जाऊंगा। तो फिर वो करने की कोशिश करेगा कि मैं आउट ना हूँ, तो मुझे पता है इसमें तो आउट होऊंगा, तो वो मैं ऊपर लेने की कोशिश करेगा। तो फिर वो दोबारा आशीष चेक करेगा, फिर वो दोबारा चेक करेगा। तो काइंड ऑफ वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं, और क्या करूँ, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न चलेंगे, मतलब इन द एंड ऑफ द गेम वो कोशिश करेंगे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम टर्न चल सके, ठीक है। अजीज आएगा, फिर वो मतलब कि ये मैक्सिमम, और इन देखूँ मैं वैसे देखूँ, ओके 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 या, तो मतलब वो कोशिश करेंगे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो मैं कहूँ कि अब देखो, अब चलना तो इनको ही है, तो फिर ये मतलब कि अब मान लो कि कुछ ऐसा होगा, मतलब मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि अब ये तो होता है कि मतलब मैं ऐसे चल के जाऊँ, एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे चलते गया, और या यहाँ से ऐसे चल के गया, जो जो डिस्टेंस होगा, मान लो ये मैंने 1 1 फिर 1, मतलब टोटल कितना चला, 1 2 3 4 5 6 चला। तो मैं यहाँ पे जो इसका और इसका सम होगा वो भी 6 होगा, ये तो पक्की है, ठीक है ना। तो फिर ये भी क्योंकि ये 1, फिर ये 1 और ये 1 और ये 2 3, तो मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो इनके इक्वल होगी, इनका सम। और जो ये डिस्टेंस होगी वो जो हॉरिजॉन्टल में चलेंगे वो इतना सम। तो मैं कह सकता हूँ कि एट द एंड कुछ ऐसा होगा, फिर वो देखेंगे कहाँ पे वो जाए, बाहर जाए, और हर एक कोशिश क्या करेगा कि वो एटलीस्ट वो पार कर पाए, कि मतलब एटलीस्ट वो अपनी सेफ चल पाए, मतलब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चलने की कोशिश करेंगे, मतलब कि ऑन द एंड वो जो कर्सर होगा, मतलब कि मान लो कि यहाँ पे ऐसे चलेगा, तो मे बी कुछ मिनिमम चलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम चलेगा, कुछ यहाँ पे मिनिमम चलेगा, ठीक है ना। तो वो सम क्या होगा कि मतलब इस तरफ कितना डायरेक्शन चले और इतने कितना चले। तो मैं कहूँगा इनमें से मैं वो फाइंड कर लूँगा कि किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम डिस्टेंस, जैसे कि कितने मैक्सिमम मूव्स चल सकते हैं। तो मैं अगर मैक्सिमम मूव्स फाउंड कर लूँ, तो फिर मैं कहूँ कि अगर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मूव्स अगर ओड हैं, ठीक है, अगर ओड हैं,
तो कौन जीतेगा? आशीष जीतेगा। ओड है तो वो उत्कर्ष जीतेगा। ओके, नहीं ओड है तो आशीष जीतेगा, सॉरी, जैसे कि 1 2 3 है तो फिर इसमें आशीष चल गया, उत्कर्ष फिर आशीष, हाँ। ओड है तो आशीष जीत जाएगा, अगर इवन है मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स तो उत्कर्ष जीतेंगे। ओके, तो फिर मुझे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स फाइंड करने कि कितने हो सकते हैं, तो वो मैं हर पॉइंट पे जाके फाइंड करूँ, मतलब मैं यहाँ से देखूंगा तो फिर मतलब कि यहाँ पे तो मुझे 0 पॉइंट चलिए मैंने, और यहाँ से यहाँ तक वो बाहर चला जाए, इतने में मैं कितने पॉइंट चल पाऊंगा, तो मान लो यहाँ पे 3, तो मैं कहूँगा अभी तक तो मैं 3 मैक्सिमम चल सकता हूँ। फिर मैंने कहा एक मैंने यहाँ पे चला, यहाँ पे कितना मैक्सिमम चल सकता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 3, यहाँ पे मैं 2, और यहाँ पे भी 2, तो मैक्सिमम 4, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0। तो काइंड ऑफ मैं इसमें से कह सकता हूँ कि मैं, अगर मैं इस पाथ पे जाऊँ, ठीक है, मतलब इस पाथ पे जाएं तो मैक्सिमम 4 मूव हो सकती है, और 4 मूव चलेंगे, तो फिर मैं मैक्सिमम मूव निकाल के ओड और इवन चेक कर लूंगा कौन जीतेगा। क्योंकि ये तो 100% श्योर है कि मैक्सिमम चलेगा। क्यों मैक्सिमम चलेगा? क्योंकि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे स्टक हूँ तो फिर वो पहले कैलकुलेट, क्योंकि ये इजीली कैलकुलेट हो सकता है कि हम, अब मैं जैसे मैंने, ये डिस्टेंस है 25 और मैं हर पे 5 चल रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे पहले ऐसी इसलिए चलती है 5, तो डिस्टेंस कितनी बची? 20, तो मैं ये 5 से डिवाइड कर मैं कहूँ मैक्सिमम 4 मूव्स चल सकता हूँ। अब उत्कर्ष देखेगा कि मैक्सिमम 4 मूव्स चल सकता हूँ, तो फिर वो हार जाएगा। अगर वो इसी डायरेक्शन चलेगा तो चलता रहे तो वो हार जाएगा, तो वो इसमें कोशिश करेगा कि वो मैक्सिमम मूव्स चले। तो एट द एंड वो देखिए हम वो, मतलब वो इस पोजीशन पहुंचे कि वो मैक्सिमम मैक्सिमम मूव्स चलते रहें, और मैक्सिमम मूव्स मैं कहूँ तो फिर बस मुझे एक मैक्सिमम मूव्स निकालना है कि मैक्सिमम मूव्स कितने हो पाएंगे, कि मैक्सिमम टर्न कितनी हो पाएंगे, बस वो निकालना है। और वो किससे निकालेंगे? वो फॉर्मूले से निकालेंगे। ओके, मतलब ऐसी प्रॉब्लम में कोई एल्गोरिदम नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, मतलब कि ऑब्जर्व करना होता है कि मतलब किस पे ये टिका हो, मतलब एक एक वो होगी, कुछ कुछ होगा, कुछ ऐसा पॉइंट होगा जिस पे ये पूरी प्रॉब्लम हो, कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ, कि जैसे इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स निकालने हैं हमें, कि हमें पता है कि वो मूव्स को बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर एक पॉइंट हमें, तो फिर उसी पाथ तक एंड करेंगे जहाँ पे वो मैक्सिमम मूव्स हो। तो देखिए दे रखा है डी, डी कॉमा के इंट डी कॉमा सी टी कॉमा, so for in I is equal to 0, I should be less than d and I plus y k। तो मैक्स मूव्स मुझे निकालने हैं और करंट मूव्स, चलो छोड़ दो इसका, मतलब x पे है तो y कितना हो सकता है? वो आ सकता है स्क्वेयर रूट ऑफ आई स्क्वेयर आई इंटू आई माइनस डी की वैल्यू कितनी हो सकती है? 10⁵, तो लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा इसको, 10⁵ का स्क्वेयर 10⁻10 होगा, फिर वो एक्सीड कर जाएगा, माइनस डी का स्क्वेयर, और मैं कह सकता हूँ डी इंटू डी स्क्वेयर माइनस आई इंटू आई, ये मुझे वाई की भी मैक्सिमम वैल्यू देती, तो फिर जो करंट मूव्स होंगे इंट करंट मूव्स होंगे वो होंगे मेरे पास टोटल वाई बाई के प्लस आई बाई के, ठीक है, इतने मेरे पास मूव आ जाएंगे, और मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सिमम कॉमा करंट, और अगर इफ मैक्सिमम इज इवन odd then output will be Ashish, else it will be Utkarsh। उत्कर्ष 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 उत्कर्ष, सही है। आशीष, ए एस एस आई एस यू टी के आर ओके, सही है।
तो ऐसी प्रॉब्लम अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम देखो कुछ भी नहीं था वैसे अपने को टोटल मूव्स फाइंड करने थे, लेकिन अगर ये समझ नहीं, लेकिन कभी समझ नहीं आए तो फिर लाइक काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं ये भी। आई थिंक सो इट शुड पास। तो फिर ऐसी प्रॉब्लम हिट एंड ट्रायल करके करते हैं, तो देखा कभी मतलब कि कैसे मैक्सिमम हो जाएगा या कैसे कुछ होगा, मतलब कि हिट एंड ट्रायल कोशिश कर करके मतलब ये हो सकता है या इस कॉन्सेप्ट पे बेस होती है काइंड ऑफ थिंग। एग्जाम्पल ले लेके सोल्व करना पड़ता है, फिर हो जाएगा इजीली, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता। आई थिंक्स इट इज पास्ट। Okay, so this is the last problem of the day. So what we are given? We are given a string. You have a string s consisting of n character. Each character is either 0 or 1. You can perform operation on the string. Each operation consists of two steps. Select an integer I from 1 to length of s, then delete the character si. The length string length got reduced by 1. The indices of the character to the right of okay also reduced by 1. If the string s is not non-empty, delete the maximum length prefix consisting of same character. Okay. The character and the string got reduced by the length of the deleted prefix. Note that both steps are mandatory in each step operation and their order can't be changed. Okay, first we have to do first operation and then second operation. For example, if you have string s something like that, the first operation can be one of the following. I'm deleting first string, I'm deleting I is equal to 2, 4, 5, 6, anything. You can finish performing operation when the string s become empty. Okay, like something like अगर मैंने पहले ऑपरेशन किया दूसरे के लिए मुझे स्ट्रिंग नहीं बची तो वो एक पूरा ऑपरेशन कंसिडर किया जाएगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म। तो स्ट्रिंग दे, तो पहले पहले तो ऐसे में देख हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो ऑपरेशन है वो हमारी स्ट्रिंग पे क्या इफेक्ट डालेगा। ओके, तो फिर मेरे पास स्ट्रिंग है कुछ इस टाइप की, इस टाइप की स्ट्रिंग है मेरे पास। तो फिर मैं एक कंप्लीट ऑपरेशन में एक कंप्लीट ऑपरेशन में लाइक उसके टू पार्ट्स हैं, टू वेज में ये कंप्लीट हो पाएगा। फर्स्ट में तो मैं कुछ भी डिलीट कर दे सकता हूँ इसमें से। ओके, तो इसको होल्ड पे रखते हैं, मतलब कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, और सेकंड में मैं क्या डिलीट कर सकता हूँ, मैं कंसेक्यूटिवली ये सब हटा सकता हूँ। ओके, तो फिर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन चाहिए, तो मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो अपोजिट स्ट्रिंग, मतलब ये एक स्ट्रिंग 1 1 हो, फिर 0 0, फिर 1 1, फिर 0 0 1, फिर 0, मतलब ऐसी अपोजिट मैं कह रहा हूँ मैं एक ऑपरेशन पूरी हटा दूंगी ये। ठीक है, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। ठीक है, ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन चाहिए तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो फिर इनको मैक्सिमम कैसे करें, मतलब कि मैं फर्स्ट ऑपरेशन किन पे लगा सकता हूँ, मैं फर्स्ट ऑपरेशन उन पे लगा दूँ जैसे कि ये है मेरे पास कुछ समथिंग लाइक दैट, जैसे कि कुछ ऐसा है, तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन लगाना है तो मैं या इस पे लगा दूं या इनमें से किसी पे लगा दूं। तो फिर क्या होगा, अगर मैंने इस पे लगाया तो स्ट्रिंग विल बिकम, मतलब ये स्टार्टिंग से एक 1 हट जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो फिर मैं स्टिल अब भी वो दूसरे सेकंड वाला ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये बस एक रिमूव हो पाएगी। तो फिर देख रहे हो कि लेंथ तो उतनी रिमूव होनी थी, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ ऑपरेशंस उतने ही रहेंगे एट द एंड। ठीक है, तो अगर मैंने वो सेम वाले पे हटा दिया, तो अगर मैंने ये रिमूव कर दी तो इसकी स्ट्रिंग विल समथिंग लुक लाइक दिस। अगर मैंने ये रिमूव कर दिया जो अपोजिट वाले में जो एक बचा हुआ है, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो अगर इस तो पहले ऑपरेशन में तो ये हो गया, तो सेकंड ऑपरेशन में ये देख रहे हैं, वैसे तो 3 ऑपरेशन लगते हैं, एक ऑपरेशन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, लेकिन अब ये एक ऑपरेशन में ही हट जाएंगे। तो फिर मैं ट्राई क्या करूँगा कि जो ये है सब स्ट्रिंग्स हैं इक्वल, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो
तो फिर मैं क्या करूँगा, बस ये एक सिंपल सी आई थिंक सो ये आई जस्ट सोल्ड। सो क्या हो गया अब, बस क्या करना है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो पहले तो मैं फाइंड करूँगा कि जो इक्वल है ना, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा पहले ऑपरेशन। ये मेरा इसको मैं 2 पॉइंटर से कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कैसे 2 पॉइंटर से करूँगा, मतलब एक मैं आई स्टार्ट कर रहा हूँ, एक जे। तो पहला ऑपरेशन जो होगा वो आई वाला होगा, सेकंड ऑपरेशन होगा वो मैं आई, हाँ, जे में लगाऊंगा। तो मैंने आई स्टार्ट कर दिया। तो मैंने फाइंड किया कहाँ भी जो दो इक्वल हैं, तो मैं उसमें से एक रिमूव कर दूंगा। तो मैंने ये रिमूव कर दिया, फिर आई मैंने यहाँ पे ला दिया। अब जे क्या करेगा, जे इस पूरी को रिमूव कर देगा, फर्स्ट वाली को। जे भी यहाँ पे आ गया। सेकंड ऑपरेशन फिर मैं सर्च करूंगा जो दो कहाँ पे इक्वल है, तो जे फिर यहाँ पे आ जाएगा, इसको रिमूव कर दूंगा मैं एक को, ठीक है। फिर आई इस जे वाला इसको पूरे को रिमूव कर देगा। सिमिलरली ऐसा चलता रहेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मतलब ऐसा स्टिंग हुआ, तो ऐसे तो कर लेंगे। लेकिन मान लो कि लास्ट में कुछ ऐसा हो गया कि यही बच गया, और जे यहाँ पे है, आई यहाँ पे। अब मुझे ऑपरेशन करने हैं, मतलब मैंने डबल वाली सारी रिमूव कर चुका हूँ मैं। अब मुझे ऑपरेशन करने हैं, अब मैं कैसे करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि इतनी ये स्ट्रिंग बची है मेरे पास, ओके। तो फिर अब मुझे करने हैं, अब मुझे कितने मैक्सिमम, लाइक अभी तक मैं ऑपरेशन, टोटल ऑपरेशन 5 लगा चुका हूँ, अब मैक्सिमम कितने लगाऊँ। तो मैं कहूँगा मैं इनमें से पीछे से निकालना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अगर मैंने बीच में से निकाल दिया, ये निकाल दिया, तो फिर ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, तो ये मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो जो डिफरेंट सब स्ट्रिंग है वो कम हो जाएंगी। तो फिर सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, वो पीछे से निकालता जाऊँ मैं। अगर वो सारी खत्म हो गई, इक्वल खत्म हो गई, तो अब मुझे निकालना था, फर्स्ट ऑपरेशन तो अप्लाई करना ही करना है, तो मैं पीछे से निकालता जाऊंगा। तो फिर एक ऑपरेशन में, जैसे कि अब मान लो कि इसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सब स्ट्रिंग्स, डिफरेंस मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 थे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, जो टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग रिमेनिंग प्लस 1/2, क्योंकि एक सब स्ट्रिंग में दो कम हो जाएंगे, दो, एक यहाँ से एक यहाँ से। लेकिन अगर लास्ट में एक बचेगी, वो मान लो 7 हैं तो दो दो कम होती होती 3 ऑपरेशन में कम हो जाएंगी, लास्ट में एक बचेगी। तो उसने कह रखा है कि अगर जो लेंथ एम्प्टी हो गई सेकंड ऑपरेशन में, तो उसको भी कंसिडर पूरा किया जाएगा ऑपरेशन। तो अगर लास्ट में एक बच गया, तो मैंने इसको फर्स्ट ऑपरेशन में रिमूव कर दिया, तो सेकंड ऑपरेशन के लिए स्ट्रिंग क्या हुई, एम्प्टी, तो वो भी ऑपरेशन काउंट किया जाएगा। तो ऑपरेशन कितने बच जाएंगे, अगर मैं लाइक जे लास्ट तक पहुंच गया, तो मैं कह दूंगा, तो मैं बस टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग काउंट कर लूँगा जो अपोजिट है। तो अब यहाँ पे देखो, तो फिर अब इसको इम्प्लीटेशन, अब देखो, चल ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर लिया कि हमने करना क्या है, कि कैसे करना है, कि मतलब कि सेम होगा, जब तक सेम होगा सेम रिमूव करते जाएंगे 2 पॉइंटर से, और जब सेम खत्म हो जाएंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो अपोजिट है बाय 2 कर देंगे, वो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन आ जाएंगे। लेकिन हम रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव करेंगे तो अगर मैं हर पॉइंट के लिए करूँ, स्ट्रिंग साइज SN है, तो अब रिमूव करूँगा एक पॉइंट, ठीक है। तो कैसे करूँगा, तो वो तो काफ़ी डिफिकल्ट सॉल्यूशन। अगर मैं मान लो दूसरी हर ऑपरेशन में दूसरी स्ट्रिंग बनूंगा एक एक रिमूव करके, तो वो तो एन स्क्वायर का हो जाएगा, क्योंकि हर में मुझे नई स्ट्रिंग एन लेंथ की बनानी पड़ेगी, तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो इट विल गोना इमीडिएटली, क्योंकि एन की वैल्यू है 10⁵ की रेंज में है, तो मैं एन या एन लॉग ऑफ एन मैक्सिमम तक यूज़ कर सकता हूँ। तो फिर डिलीट कैसे करेंगे, तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं 2 पॉइंटर। तो 2 पॉइंटर का फ़ायदा क्या है, 2 पॉइंटर का फ़ायदा क्या होता है कि हम अगर ये आई इससे चला गया ना, तो इस पर वापस दोबारा नहीं आएगा, ये इसका फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तुम जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये डबल है, ठीक है, तो इसमें से मैंने कहा कि आई डबल है, तो इसमें से मैंने फर्स्ट ऑप्शन लगा दिया, रिमूव कर दिया, तो ये ऐसे हो गया, और आई अब आगे चला गया, आई यहाँ पे चला गया। जब भी मैं जे आएगा, तो जे क्या करेगा, जे को मतलब कि सेकंड ऑपरेशन आएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है, कि सेम सब स्ट्रिंग रिमूव करनी है, उसमें चाहिए एक एलिमेंट हो, चाहिए 2 एलिमेंट हो, चाहिए 5 एलिमेंट हो, उसको वो फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि सेम एलिमेंट रिमूव करने चाहिए मुझे। तो मैं अगर मैं कहूँ कि इसमें मैं 2 रहने ही दूँ मैं, तो फिर ये तो रिमूव तो कंप्लीट करेगा, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं।
ठीक है ना, क्योंकि वो तो चाहिए एक हो, चाहिए एक से ज़्यादा हो, और मैं तो एक वाले को किसी को रिमूव कर नहीं रहा, मैं किसको रिमूव कर रहा हूँ, जो एक से ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जो दो इक्वल है उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो फिर चलो यहाँ तो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं लास्ट तक पहुँच गया तो फिर मेरी अब मैं कहूँ कि मैं लास्ट तक पहुँच गया, अब लास्ट तक पहुँच गया, अब इन लास्ट का पहुँच गया, और ऐसी स्ट्रिंग मैंने डिलीट नहीं की मतलब मैंने जो इक्वल है वो ऑपरेशन तो लगा दिए, लेकिन वो मैंने काउंट कर लिए लेकिन डिलीट नहीं किए। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं डिलीट करता तो ये स्ट्रिंग कुछ ऐसी दिखाई देती मुझे। ठीक है, कुछ ऐसी, अगर क्योंकि मैं सेम वाली डिलीट करता तो उस स्ट्रिंग ऐसे दिखाई देती, लेकिन मैंने डिलीट नहीं किया तो सेम अभी भी प्रेजेंट है। और मैं जब तक आई ऑपरेशन लगा रहा हूँ, आई मतलब फर्स्ट ऑपरेशन लगा रहा हूँ, क्यों ऐसी क्यों दिखती, क्योंकि फर्स्ट ऑपरेशन में क्या कर रहा हूँ मैं, जो सेम है उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ जो। ठीक है, तो उससे मेरा नंबर ऑफ ऑपरेशन मतलब कि बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैंने डिफरेंट वो मैंने बता दिया कि अगर मैं फर्स्ट ऑपरेशन में मैं जो इक्वल है ना उसको मैं रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसको पहले जैसे पहले की ये रिमूव करता, फिर अगले उससे अगले ऑपरेशन में ये करता, फिर जे इंक्रीज होता, मतलब जे मतलब कि सेकंड ऑपरेशन इंक्रीज होता जाता, फिर अगले ऑपरेशन में मैं ये रिमूव करता, फिर जे कुछ इंक्रीज होता आता, फिर मैं ये रिमूव करता, फिर मैं यहाँ तक पहुँच गया और जे यहाँ तक पहुँच गया, ऐसा सिनेरियो है मैंने। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ मैं डिलीट नहीं कर रहा, मैंने यही कहा कि मैं डिलीट नहीं करना, क्योंकि डिलीट करूँगा तो एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। तो ये आता, तो इसमें भी रिजल्ट कितना आता कि हम क्या फाइंड करते हैं, कितनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग है डिफरेंट वाली, तो 1 2 3 4 5, तो 5/2। अगर मैं इसमें फाइंड करूँ, मैं जे लास्ट तक पहुँच गया, तो इसमें फाइंड करूँ तो मैं, तो वो सब स्ट्रिंग जो अपोजिट है, तो सब स्ट्रिंग वो अपोजिट है, जो अपोजिट सब स्ट्रिंग है वो तो सेम ही रहेंगी ना, मतलब कि एक 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, तो सब स्ट्रिंग तो सेम ही रहेंगी ना, तो हमें सब स्ट्रिंग से चाहिए ना बस, तो नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग बाय 2, तो यू कैन सी we no don't need to delete the same element of the first operation elements। ओके, तो फर्स्ट ऑपरेशन वाले जो एलिमेंट उनको डिलीट करने की जरूरत नहीं सेकंड एलिमेंट्स की, क्योंकि हम 2 पॉइंट यूज कर रहे हैं। तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, so you can do by yourself, or I'm just doing the code, follow। तो फर्स्ट दे क्या दे रखा है, एक एन दे रखा है, एंड एन, और स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग एस। ओके, हो गया, स्ट्रिंग एस हो गई। हम्म, अब मुझे टोटल फाइंड करने हैं। तो इन तो वही दो ऑपरेशन, इंट जे इज इक्वल टू 0, और मैं इसको तय कह भी दूँ, फर्स्ट ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन ऑपरेशन एंड सेकंड ऑपरेशन, सेकंड ओपी लिख देता हूँ, सेकंड ऑपरेशन एंड फर्स्ट ऑपरेशन एंड टोटल ऑपरेशंस इन टोटल ओपी। ओके, तो वाइल जे सेकंड ऑपरेशन लेस देन एन। ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ, तो पहले तो मैं वाइल सेकंड ऑपरेशन जब पॉइंटर है वो शुड बी लेस देन एन, एंड इफ जो लेस देन एन माइनस 1। ठीक है, और जो सेकंड ऑपरेशन है मतलब वो स्ट्रिंग एस है, सेकंड ऑपरेशन +1 इज इक्वल टू एस ऑफ सेकंड ऑपरेशन। अगर वो इक्वल मिल गए मुझे तो मैं यहीं पे ब्रेक कर दूंगा, तो मैं कह दूंगा भाई कि पहले तो बूल ऑपरेशन डन और नॉट, ये मुझे बताएगा कि मैंने फर्स्ट ऑपरेशन किया है या नहीं। तो ये हो गया तो मैं कह दूंगा ऑपरेशन डन, इसको मैं कर दूंगा ट्रू की ऑपरेशन हो गया है, मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा। और नहीं, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे वैल्यू अगर नहीं सेम नहीं है ना, तो फिर ये मैं करता रहूँगा ओपी डन, सॉरी ओपी डन नहीं, हाँ सेकेंड ऑपरेशन में प्लस करता रहूँगा, जब तक मुझे सेम नहीं मिलती मैं प्लस करता रहूँगा। अब मैं कह रहा हूँ अब मुझे सेम मिल गई या नहीं मिली, तो फिर मैं कह रहा हूँ अगर सेकेंड ऑपरेशन वो एन के बराबर हो गया, इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू n-1 भी, मैं इसको जैसे ये स्ट्रिंग है,
ठीक है, 1 1 ऐसे 0 1 0 1 है, 0। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर मैं इसको चेक कर रहा हूँ, फिर यहाँ से इसको चेक कर रहा हूँ, यहाँ से इसको चेक कर रहा हूँ, फिर यहाँ प्लस हो गई। तो हाँ, अगर n-1 आ गई तो मैं इसको ब्रेक कर दूँ कि मतलब मुझे मिले नहीं, अभी तक फर्स्ट ऑपरेशन मेरा नहीं हुआ। सेकंड मैन वेट, फर्स्ट ऑपरेशन नहीं, फर्स्ट ऑपरेशन मतलब जिसमें एक एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है। ओके, ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन है नहीं है। अगर वो n-1 बराबर आ गया तो मतलब मेरा फर्स्ट ऑपरेशन नहीं हुआ है अभी तक, मतलब लास्ट तक पहुंच गया, तो फिर मुझे ब्रेक करना, मतलब सेकंड ऑपरेशन में कर ही नहीं सकता फर्स्ट ऑपरेशन के बिना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब वाइल, अब मुझे सेकंड ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। सेकंड ऑपरेशन मतलब कि यहाँ से लेके वहां तक के सभी एलिमेंट मुझे वो निकालने पड़ेंगे, मतलब जितने भी सेम एलिमेंट्स हो। वाइल सेकंड इज लेस देन एन एंड इफ एस ऑफ सेकंड ऑपरेशन इज इक्वल टू, मैं एक अनदर पॉइंटर ले लेता हूँ, इज इक्वल टू सेकंड ऑपरेशन वाइल के इज लेस देन दिस वन, और वो इक्वल है तो मैं प्लस प्लस करते जाऊँ, मतलब कि जो अब सेकंड ऑपरेशन में कर रहा हूँ, जो सेकंड यहाँ से लेके मतलब कोई भी स्ट्रिंग है, यही मतलब सेकंड ऑपरेशन पिछला ही मेरा यहाँ तक था, ठीक है। तो मैं इन सब सेम एलिमेंट्स को बाहर निकाल दूँ, फिर यहाँ पे मैं पॉइंटर ले आऊँगा, तो इक्वल है तो k प्लस प्लस 1, तो सेकंड ऑपरेटर मेरा k के बराबर आ जाएगा। ओके, और मैंने फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, तो फर्स्ट ऑपरेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देख, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये मतलब ऐसा हुआ कुछ 0 1 2 3 4, ठीक है। तो मतलब कभी भी कंफ्यूजन हो ना इनमें ऑपरेशन में, तो एक बार एग्जाम्पल लेके देख लेगा, तो सब सोल्व हो जाएगा। तो मतलब मैं कह रहा हूँ ये मैं इस ये 1 पॉइंट के लिए तो 1 और 2 को मैं चेक कर रहा हूँ, 1 और 1+1 के लिए, ठीक है, दैट इज इनके लिए चेक कर रहा हूँ। अगर सेम है तो मैं यहीं पे ब्रेक करूँगा, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो ऑपरेशन की वैल्यू कितनी है 1, लेकिन मैं इसको डिलीट करूँगा, ठीक है, लेकिन मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो ये पॉइंटर मेरा यहाँ आना चाहिए, ठीक है, तो इसको +1 कर दिया मैंने। ओके, और फर्स्ट ऑपरेशन इज इक्वल टू मैक्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन कॉमा सेकंड ऑपरेशन। ये क्या मतलब है इसका, मतलब कि अब देख लो यही एक एग्जाम्पल हुआ, तो मैं तो पहले यहाँ से फाइंड करने चला हूँ सेकंड ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन कि सेम मिल जाए, तो मुझे पहले ही सेम मिल गई, तो मैंने ये डिलीट करके मेरा फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ पे ला दिया। लेकिन जब मैं सेकंड ऑपरेशन चलाऊंगा, सेकंड ऑपरेशन में ये सारी डिलीट कर दूंगा, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि अगर ये पीछे तो नहीं रहेगा, मुझे सारे डिलीट वाले स्ट्रिंग में तो नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करने पड़ेगा अगली बार। ओके, बस यही किया था। तो टोटल ऑपरेशन विल बी प्लस प्लस टोटल, ओ मैन, TOTL। अब फॉर int I इज इक्वल टू सेकेंड ऑपरेशन से लेके n तक मुझे चलना पड़ेगा। अब मुझे फाइंड करना है वो अपोजिट वाली कितनी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स SS अपोजिट स्ट्रिंग, int j is equal to I and while j is less than n and s of j is equal to s of I, तो j प्लस प्लस and I is equal to j and total string प्लस प्लस, तो टोटल ऑपरेशंस विल बी, ये बता दिया +1/2। सी आउट टोटल ऑपरेशंस। ओके, ये आई थिंक सब सोल्व हो गया। तो फिर एक बार रिकैप कर देते हैं। तो किया कि हमने कुछ नहीं किया इतना, मतलब कि जो बताया था वही है। तो पहले तो फर्स्ट ऑपरेशन सेकंड ऑपरेशन, मतलब टू आई और जे, मैं फर्स्ट ऑपरेशन सेकंड ऑपरेशन कर रहा हूँ, पहले तो मैं कर रहा हूँ फर्स्ट ऑपरेशन, मतलब कहीं भी मुझे दो सेम एलिमेंट मिल गए तो एक पीछे वाले को डिलीट करके अगले वाले पे पहुंच जाऊंगा। अगर सेम नहीं मिले, मतलब मैं लास्ट तक पहुंच गया, तो मैं इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, ठीक है।
फर्स्ट ऑपरेशन मैंने एक इंक्रीज कर दिया, पिछले वाला डिलीट करके एक अगले वाले पे आ गया मैं। फिर उसके बाद मैं जहाँ पे हूँ सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, जहाँ पे हूँ वहाँ से लेके जितने भी सेम एलिमेंट्स हैं उनको सबको बाहर निकाल, ये निकाल दिया, तो मैं सेकंड ऑपरेशन मतलब सेम एलिमेंट्स के आगे आ गया। ओके। फिर अब लास्ट में पहुंच गए कि मतलब जो फर्स्ट ऑपरेशन नहीं लगा पा रहा, तो फिर मैं करूँगा फर्स्ट ऑपरेशन सेकंड ऑपरेशन के बीच में जितनी भी गैप है उसमें कितनी टोटल वो अपोजिट स्ट्रिंग्स हैं उनको +1/2 टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, मतलब एक मैं पहले आगे से निकालूंगा एक पीछे से निकालूंगा बस। 2 2 1 2 1। ओके, तो 1 2 1 2 1 0 1, तो फिर इसमें तो 1 2 3 4 5 6, 6/2। ओके, तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं फर्स्ट ऑपरेशन चेक कर रहा हूँ कि मतलब ये कहीं इक्वल आ जाए, तो इक्वल तो आएगी नहीं कहीं पे, तो ये तो यहीं ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहीं ब्रेक हो गया। सेकेंड ऑपरेशन जीरो से लेके मैं एन तक चलूँगा, एन तक कितनी इक्वल है मेरे, तो ओके -1 आएगा ये, सॉरी या आप सही है। ठीक है ना, ये समझ में आया क्यों -1 आएगा, ये मतलब ये तो बेसिक है, मेरे से मुझसे गलती होगी, क्योंकि नहीं तो फिर ये एक ज़्यादा +1 कर रहा है। या इट इज़ एक्सेप्टेड। ओके, थैंक यू।